everyone, my name is Prem Vada and welcome to World Student Scope. Today in this session we are going to start with chapter 2 of class 7th, that is nutrition in animals. So since the name suggests that in this chapter we are going to talk about the nutrition, how nutrition takes place in case of animals. And apart from studying that, कि nutrition के modes क्या क्या होते हैं, कैसे animals अपना nutrition लेते हैं, apart from that we are going to study a very important topic in this chapter, that is digestion in humans. Since we are also animals, तो हमारे अंदर digestion कैसे takes place करती है, that also we are going to cover in this topic. So now let us begin with our chapter. Alright, so we are first starting with the nutrition in animals. So let us now see the definition that is written in your NCERT. That is straight from your NCERT. Alright, so let us now start that animal nutrition includes nutrient requirement. Nutrient की requirement सभी को होती है, तो एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी. ऑलराइट, उसके अलावा व्हाट आर वी गोइंग टू सी और व्हाट डू वी सी इन दैट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि जो एनिमल है वो किस तरीके से अपना फूड लेता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव हैंड्स तो आई सिंपली ईट, एंड सिंस दिस काउ दैट यू कैन सी इन दिस इमेज, इट डज नॉट हैव अ हैंड प्रॉपर्ली टू pick up and eat its food, so it simply is what it does, it simply cuts the grass from its teeth and start chewing it. All right, biting करके then it start chewing the grass. All right, and its utilization in the body. अब nutrient पता लग गया कौन सा है. हमारे केस में हमने खा लिया either we eat vegetarian or non vegetarian. काउ के केस में cow eats grass. All right, so ये intake of food की बात होगी, and further this food is utilized in the body. उसकी utilization के बारे में हम देखेंगे how it is utilized in the body. All right, so yes, now see the process of taking of food into the body is called ingestion. पहले तो आप ये याद कर लो, ठीक है, कि ingestion होता क्या है. हम हमेशा simple language में, simple English में we say that okay, all right, since we have got the plate and then we simply eat the food. But that is not the whole scenario. उसका process होता है एक, उसका नाम होता है कि in terms of bio. Biology के term में, terms of science में, it has a particular name that is called as ingestion. तो eating the food basically, it simply means eating the food. Nothing complex. Now the components of food such as carbohydrates are complex substances. See, what happens is कि for example आपने एक चपाती खाई, ठीक है, और either you take the example of rice. So let's suppose मैंने rice खाया, ठीक है, तो what do you think कि जो rice मैंने खाए हैं, the grains of rice, the boiled or cooked rice that I have just ingested, तो क्या वो as it is मेरे stomach में चला जाता है, or first you chew it in your mouth and then it goes inside my stomach? So I believe that is the second one, that when you eat the rice, you chew it properly and then it goes into your stomach. Clear till here? Sorry. So what is happening कि rice contains carbohydrates, we know that, ठीक है. Let me write down here also that जो carbohydrates, हमने इसका example I believe पढ़ा भी है. So rice में क्या होते हैं, carbohydrates होते हैं. तो carbohydrates जो rice में present है वो काफी complex form में होते हैं. So that is the reason why कि जब भी आप खाते हो rice तो वो as it is आपकी body में नहीं जाता है. It first needs to be broken down into something simpler. Are we clear? कि कोई चीज अगर कॉम्प्लेक्स है तो पहले आप उसको सिंपल करते हो. Let's suppose bio is very complex. Yeah? तो since I am explaining it to you, so you might feel okay. Now I'm understanding a bit and it has become a little simpler for me. So same happens with the food also. कि carbohydrates बहुत complex form में आते हैं, but then आपको उसको chew करके, the process of chewing or process of digestion that takes place in animals, that is the reason it, and that is the what do we call it as, that is the process that actually converts these complex substances into simpler substances. All right, so now let us see, these complex substances are not utilized, so they are broken into smaller substances. So let's suppose this is the complex substance, as you can see in this image. ये complex substance देखो कैसे आपस में bonded है, and when you cut it, and वो कैसे होएगा, when you start chewing it in your mouth, or whenever whatever is your mode of intaking the food, because it depends on animals, animal to animal it will depend, and complex substances will broken down into simpler substances, as you can see in this reaction form, right? कि पहला आपको complex substances दिखा जो आपस में bonded है, and the moment you break the bond, that substance will become into simpler substances. Clear till here?
Okay, so let us now see. ये बहुत important है बेटा definition. This is very important definition that you must remember. So what happens is the breakdown of complex components of food, breakdown of complex components such as carbohydrates, all right, into simpler substances is called digestion. समझ में आया? Ingestion आपको समझ में आ गया था? Ingestion हमने क्या देखा था बेटा? Ingestion मतलब eating food. Simple मैं I'm talking in very simple English. Eating food. And whereas digestion का मतलब क्या हो गया? Digestion का मतलब as we are studying, digestion का मतलब digesting the food. Digesting the food. आपने जो खाना खाया फिर वो पचेगा भी तो, right? वो पचेगा भी तो. So now see this example. ये stomach में for example आपने आइसक्रीम खाई है, or you have taken the meat, or you have taken the carrots, vegetables, fruits, whatever you are eating, it is simply going in the stomach and it is getting digested. So it's just a pictorial representation of what we eat and where it goes. All right. So this is the image of a stomach. If you wonder that what it is the image of stomach. And as you can see, there are many types of food inside the stomach that you eat. All right. Definition आपको याद रखनी है. Definition is very important for you to learn. Right. All right. अब आ जाती है बेटा बात different ways of taking food. You know that there are various type of organisms, living organisms that are present on the earth, and सब एक तरीके से खाना नहीं खाते. Yes, yeah. So that is what we are studying in this topic. That कौन-कौन से तरीके होते हैं food को खाने के. All right. So पहली लाइन पढ़ते हैं. Let us start now. Okay. Each species or type of organism has their own way of taking in food. सबका अपना तरीका है. That we discussed. First point. Second. Example, let us talk about example now. For example, bees and hummingbirds suck plant nectars. Plant में आपने अगर कभी देखा होगा या आपको जैसे खुशबू आती है तो काफी आपको अच्छी खुशबू आती है, मीठे से खुशबू आती है. And not only that, कुछ juices present होते हैं that we talk in the name of nectars. कि plant में flowers में basically nectars होते हैं. They are quite sweet in taste. उनका taste कैसा होता है? Sweet होता है. ठीक है? तो यहां से बीज और हमिंग बर्ड्स जो है वो नेक्टर सक करते हैं. इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. इन्फेंट जो बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वेदर इन केस ऑफ ह्यूमंस, वेदर इन केस ऑफ एनिमल्स, सो व्हाट दे डू, दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, है ना, मदर्स मिल्क पे दे फीड. नाउ स्नेक्स सच एज पाइथन कंज्यूम द एनिमल्स अपॉन व्हिच दे प्रे. बट स्नेक आपने देखा होगा, आई बिलीव आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे भी देखा होगा, एंड इफ नॉट ऑन द नेशनल ज्योग्राफिक देन यू माइट हैव सीन ऑन द टीवीज आल्सो. सो व्हाट स्नेक्स डू, दे ईट द होल एनिमल. जैसे ऑब्वियसली नॉट बिगर देन देम, लेट्स सपोज दे ईट फ्रॉग एंड लेट्स सपोज दे ईट रैबिट. सो व्हाट दे डू इज दे सिंपली swallow the whole animal. They will either swallow the whole rabbit, पूरा का पूरा rabbit, and either they will swallow the whole frog. एंड धीरे 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 फिर उसके बाद उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. द एनिमल्स डाई इनसाइड द स्टमक ऑफ स्नेक्स एंड देन डाइजेशन टेक्स प्लेस. ऑलराइट. फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग क्लोज बाय एंड फीड ऑन देम. तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर करते हैं सम फूड पार्टिकल्स. क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. लेट्स पहले तो आप ये याद कर लो, ठीक है. एक्वाटिक क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक मींस animals that live in water. आवे क्लियर. सो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं. एंड व्हाट दे डू इज, क्योंकि पानी आसपास है एंड दे हैव टू ईट फूड आल्सो, तो whenever they drink water, और जब भी वाटर उनके सिस्टम से पास करता है तो जो पानी के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, तो पानी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उसको वो फिल्टर कर लेते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, एंड वही फूड फिर वो खाते हैं. ठीक है. तो आपने देख लिया कि हमने कुछ एनिमल्स तो वैसे एग्जांपल में पढ़नी है. वी टॉक्ड अबाउट बीज, वी टॉक्ड अबाउट हमिंग बर्ड्स, वी टॉक्ड अबाउट स्नेक, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट एक्वाटिक एनिमल्स. एंड किसी का भी आपको मोड ऑफ टेकिंग फूड सेम नहीं लगा होगा, राइट? Because every animal has a different ways of taking the food. Even us, yeah, we eat food with our hands and our mouth, right?
So now let us move forward with the activity number 2.1 from your NCERT, which is obviously related to the methods of taking food. कि कौन से animals किस तरीके के food और कैसे लेते हैं, ठीक है? So let us now look at the procedure first. So what is the type of food and mode of feeding of the following animals? जो आपको इस टेबल में दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, तो आपने वो देखने हैं, आपको बताना है कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं and how they eat it. Write down the observation. So let us start with writing down the observation first. तो पहला आपको दिया हुआ है snail, ठीक है? Snail, let's suppose snail eats the kind of leaves. Kind of food is leaves. तो कुछ जो dry leaves है, let's suppose snail eats that, ठीक है? And mode of feeding क्या हो जाएगी बेटा? क्योंकि बेटा leaves थोड़े क्या होते हैं? They are quite solid. So let's say that they chew the food. So mode of feeding होगी इनकी chewing. All right? Now let us talk about the ant. तो ant क्या खाते हैं? Let's suppose ant ने खा लिया wheat, ठीक है? wheat खा लिया और let's suppose flour, है ना? flour किसका बनता है? wheat का बनता है. And they also chew that food. तो हम कह सकते हैं chewing. eagle खाती है meat. पता है ना आपको? eagle meat खाती है. So eagle अगर meat खाती है तो how will it eat? क्योंकि ईगल के पास तो टीथ नहीं होते, है ना? जिनके पास छोटे छोटे टीथ होते हैं, that animals can chew, but the animals which do not have teeth, so eagles they have beak, yeah, so they will simple swallow. तो हम बोल सकते हैं that eagles eat by swallowing the food, पूरा निगल जाना, ठीक है? And hummingbird हमने अभी पढ़ा था, hummingbird eats nectar. But nectar भी कैसे करते हैं बेटा? They do not swallow, they do not chew it, they simply suck it. So sucking is the mode of feeding in case of hummingbirds. अच्छा, leaves जो हमारे बालों में जू नहीं पड़ जाती है ना, which is not a very good thing to feel exactly, but yeah, sometimes it happens. So leaves is that animal and it sucks blood because it does not have teeth, and क्योंकि blood is a liquid, so it requires sucking of the blood, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भी sucking लिख दिया. Okay, now mosquito also feeds on blood of humans or animals, and since we are talking about the liquid, so यहाँ पे भी sucking involved है, the mode of taking the food. उसके अलावा आ जाता है butterfly. बेटा butterfly also takes nectar from the flowers, and since nectar is in a form of a liquid, तो हम बात करेंगे sucking की, ठीक है? उसके अलावा ये जो हाउस फ्लाई है, ये खाते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड. दे ईट सेमी डाइजेस्टेड फूड, बट हाउस फ्लाई के केस में बेटा टीथ नहीं होती है, कोई बीक भी नहीं होती है, तो दे सिंपली हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन देम, ठीक है? जिससे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो खाना है सेमी डाइजेस्टेड, वो उसको पूरा ड्राई कर देते हैं, ठीक है? एंड दैट इज कॉल्ड एज सिफोनिंग. दैट इज कॉल्ड एज siphoning with their tube-like structure present in their mouth. All right. So these are the types of animals and the types of food they eat and how they eat. ठीक है? ये आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. So you must remember this activity. एक्टिविटी कोई मिस नहीं करनी है, बिकॉज इससे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगा, ठीक है? All right. अब आ जाता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, नोट साथ साथ बनाने हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल. ऑलराइट, सो नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. ट्रैक्ट का मतलब हम कह लेते हैं वे, रास्ता, कि ऐसा रास्ता जहां से पूरे डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्रैक्ट, ठीक है? द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उसके साथ कुछ ऑर्गन्स हैं बेटा, एसोसिएटेड कुछ ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, साथ में मिलके डाइजेशन करवाते हैं इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है? सो क्या क्या हमने पढ़ा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर constitute digestive system in humans. Glands और digestive tract आपस में मिला के क्या बनाते हैं? Digestive system, right? So this constitutes the whole path along which food moves through the body.
क्या है? ये होल पाथ है जिसके थ्रू फूड मूव करता है थ्रू द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग विद एनस। तो ये इसका स्टार्ट पोजीशन होगी माउथ, क्योंकि आप खाना कहां से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। तो द मोमेंट आई एट द फूड, द डाइजेशन हैज स्टार्टेड। ऑलराइट, एंड ऑफ द टॉपिक। I mean not in that sense, क्योंकि आपने जैसे ही खाना खाया तो डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि स्टार्ट विद योर माउथ, राइट? तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। एनस इज द एंड पॉइंट। एनस इज द एंड पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है दैट कम्स आउट ऑफ द एनस। आपने खाना खा लिया तो जितना आपको न्यूट्रिएंट चाहिए था वो तो डाइजेस्ट हो गया, तो जो बच गया, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, दैट कम्स आउट ऑफ द एनस। तो माउथ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनस हो गया एंड पॉइंट, राइट? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक्चुअली क्या क्या आता है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आएगा, ठीक है? बकल कैविटी फर्स्ट, ठीक है? आई वुड रादर, आप, मैं यहाँ पे नंबर है इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। नंबर 1 इज द बकल कैविटी, नंबर 2 इज द फूड पाइप। सबके बारे में पढ़ेंगे बेटा एक एक करके, पहले आप नाम समझ लो। फर्स्ट वन इज द बकल कैविटी, सेकंड वन इज फूड पाइप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज esophagus. It is not pronounced as oesophagus, it is pronounced as esophagus. All right? First one is the buccal cavity, second is the food pipe or esophagus, third one is the stomach, तीसरा क्या है? stomach, fourth one is the small intestine, fifth one is the large intestine ending in rectum. कहां खत्म होता है? रेक्टम में। अभी हम पढ़ेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि लार्ज इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट होता है एंड रेक्टम में कहां जाके एंड करता है। एंड सिक्स्थ पार्ट इज द एनस। तो ये 6 पार्ट्स आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए। बकल कैविटी, फूड पाइप, ध्यान से देखो, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, राइट? इसके नीचे जब आप गले के नीचे आओगे तो स्टमक, एवरीबॉडी नोज वेयर द स्टमक इज, राइट? स्टमक के नीचे अगर आप जाओगे, अब स्टमक के और नीचे, देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन विच एंड्स इन द रेक्टम एंड देन कम्स द एनस। अब क्लियर? उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम कहां थे? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास आर द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने पढ़ा था ना एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो वन ऑफ दोज मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर आइदर सलाइवरी ग्लैंड्स, आप ले लो, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है एंड पेनक्रियास है, राइट? तो ये आपको बेटा डायग्राम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको? ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें हम वो चीजें देखेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखोगे माउथ, देखते हैं, अब 1 2 मैं करने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मार्क इट नाउ। माउथ इज द फर्स्ट वन, ठीक है? उसके बाद सेकंड है ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, देन कम स्टमक, थर्ड पार्ट इज द स्टमक, फोर्थ वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन विच एंड्स इन द रेक्टम। इमेज को देखो, देन कम्स एनस, दैट इज द सिक्स्थ पार्ट। उसके अलावा बेटा जो हम मेजर ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, मेजर ग्लैंड्स, ठीक है? मेजर ग्लैंड्स में आपका सबसे पहले आ गया सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? यहां मैं ग्लैंड्स लिख दूं, ठीक है? ये ग्लैंड हो गया। उसके बाद आपका लिवर है बेटा, दैट इज ऑल्सो अ ग्लैंड, देखो कहां मैंने लिखा है, एंड पैनक्रियास इज ऑल्सो अ ग्लैंड। तो दीज आर कंसिडर्ड एज द मेजर ग्लैंड्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, कुछ इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है बेटा हमें, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आता है, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गया सबको? माउथ कहां पे है? माउथ सबको पता है। उसके बाद ईसोफेगस, फूड पाइप किधर है? स्टमक देख लो, नीचे आ गए हम, स्टमक कहां पे है? देखो स्टमक ये रहा। उसके नीचे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पिंक कलर का जो है बेटा, जहां पे मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे मैंने एल लिखा है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। देन विच एंड्स एट द रेक्टम, ये पार्ट जहां पे मैं सर्कल कर रही हूँ, ये रेक्टम पार्ट है। उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है एनस, उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? एनस प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये सीक्वेंस है बेटा, दैट इज अ ट्रैक, दैट इज अ वे
ऑफ द फूड, कि फूड कहाँ कहाँ से जाता है, तो वो आपको रास्ता दिखाया हुआ इसमें, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. So let us first start with the mouth, which is also called as the buccal cavity. क्या बोलते हैं हम इसको? Buccal cavity, right? या फिर mouth. क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, पार्ट बाय पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हर पार्ट में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन ईच पार्ट, राइट. ऑलराइट, सो द बकल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज द माउथ. आसान भाषा में हम इसको माउथ बोलते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकली देन वी कॉल इट एज बकल कैविटी. And remember that it is the beginning of the digestive system for humans. यहीं से digestion start होती है, right? It consists of tongue and teeth. हमारे मुंह में क्या क्या है? What do we have in our mouth? We have teeth and we have tongue. Yeah? Everybody feel that we have teeth and we have tongue. So that is what we have in our mouth and that is shown in your image also. देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको इमेज में, जब आप इमेज देखो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको, सो व्हाट डू वी हैव इन दिस इमेज, टीथ एंड टंग. ये आ गई टीथ, ये आ गया टंग. सो दीज टू सब्सटेंसेस वी हैव इन आवर बकल कैविटी, राइट. अब ये देख लेते हैं बेटा फंक्शन क्या क्या करते हैं, टीथ का फंक्शन क्या होता है. सो टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड. खाना खाते हैं हम, खाने को च्यू करते हैं, या chewing food, not with the music, but yes, by clicking your teeth. Yeah, helps in chewing food and breaking down food into smaller particles. तो आपने realize किया होगा that when you चपाती, for example, आपने इतनी बड़ी चपाती खाई है and you had it, आपने खा लिया उस चपाती को, तो क्या वो same size रहता है चपाती का when you put it in your mouth? No, because after some time what happens, कि जब आप उसको च्यू करना स्टार्ट करते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने लग जाता है, राइट. आई होप एवरीबडी हैव ऑब्जर्व्ड इट. या सो क्यों क्या हो रहा है, हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को, वी आर ब्रेकिंग डाउन द फूड इनसाइड आवर माउथ, राइट. उसके बाद बेटा टंग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. टंग का क्या फंक्शन होता है हमारे माउथ में, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. पहली बात तो मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, इसमें बोन तो नहीं है, बोन होती है हड्डी. अगर आप टच करो अपने हैंड को लाइक दिस, अपने रिस्ट के पास, तो यू विल फील बोन इनसाइड इट. आपको हार्ड सब्सटेंस फील होएगा, दैट इज अ बोन. बट ये आपको हार्ड सब्सटेंस आपके टंग में नहीं फील होएगा, बिकॉज योर टंग डू नॉट हैव एनी बोन्स. उसमें कोई बोन्स नहीं होते. इट्स टोटली अ मस्कुलर ऑर्गन. या एंड रिमेंबर दैट इट इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. ये कहाँ अटैच्ड होता है, आपके माउथ के अंदर पीछे की तरफ अटैच्ड होता है. I cannot show you क्योंकि इतना वाइड मैं अपना मुंह खोल नहीं सकूंगी, बट अंडरस्टैंड दिस कि जो आपका टंग है इट इज अटैच्ड, क्योंकि किसी चीज से तो अटैच्ड रहेगा ना बेटा, अदरवाइज टंग बाहर नहीं आ जाता. तो अटैच है एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के बिल्कुल पीछे की तरफ अटैच्ड है टंग, राइट. उसके अलावा बेटा सलाइवा है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बकल कैविटी. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट बट इट इज सिक्रीटेड इन द माउथ एंड हेल्प्स इन breakdown of food. What happens is, जब आपने for example you ate the chapati, तो आप देखोगे कि your mouth becomes wet. या अगर आप ये भी सुन लो, किसी कोई अगर आपका for example tasty food है राजमा चावल, और you like pizzas और you like burgers, तो अगर उसका कोई नाम ले तो आपके मुंह में कैसे पानी आ जाता है ना. तो वो पानी नहीं आता है, that is saliva that comes in your mouth. ठीक है, and saliva basically क्यों secrete होता है हमारी माउथ में, जब भी आप खाना खाते हो, whenever you eat the food, तो what happens, saliva gets secreted in our mouth. saliva start हो जाता है प्रोड्यूस होना हमारे मुंह के अंदर, and our mouth becomes wet. थोड़ा गीला हो जाता है हमारा माउथ. क्यों? क्योंकि saliva जो है वो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. किस तरह करता है ये भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है. बट ये तीन चीज आपने याद रखनी है, that our buccal cavity has teeth, tongue and saliva, right? Now let us talk about teeth first. कि टीथ कैसे हैं, कौन कौन से हैं, किन किन फंक्शंस में आते हैं. ठीक है, सो लेट्स नाउ सी दैट ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ सॉकेट? ऑलराइट, तो आपने देखा होगा बेटा, आप सभी घर में स्विच है, एवरीबडी हैज स्विचेस इन देयर होम. सभी में आप टीवी के प्लग्स केबल्स अटैच करते हो, और नॉट ओनली दैट, यू अटैच योर चार्जर्स इन देम.
तो आपने देखा होगा कि उस जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं ना स्विच बोर्ड्स में, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम सॉकेट बोलते हैं. What do we call it as? Socket. And उस सॉकेट में देन यू फिट योर चार्जर. आपके चार्जर के पास क्या होता है? चार्जर के आगे कैसे लगी होती हैं? सिल्वर की पिन्स लगी होती है ना, है ना, मेटल की पिन्स लगी होती हैं. तो आप क्या करते हो? आप जब उसको सॉकेट में डालते हो तो वो इजीली फिट हो जाता है. यही होता है ना. सेम गोज विद आवर टीथ. अब टीथ क्या है बेटा? हर एक टीथ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं तो वो रूटेड है ना, कहीं ना कहीं वो अटैच्ड है. तो जो अटैचमेंट पॉइंट है जहां पे वो अटैच्ड है हमारा टीथ, सारा टीथ हमारा जहां अटैच्ड है, दैट इज अ सॉकेट. उसको भी हम सॉकेट बोलते हैं बिकॉज वो भी खाली जगह है जहां पे हमारा टीथ घुसा हुआ है. या सो दैट इज सॉकेट इन द गम्स. दीज आर द गम्स विच आर प्रेजेंट बीनीथ द टीथ. ठीक है. So our teeth vary in appearance and perform different functions. दिखने में भी डिफरेंट होते हैं सारे टीथ, एक जैसे नहीं होते टीथ. ये बात याद रख लो. ठीक है. तो अब आ जाओ इमेज पे. देखो राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही होगी टीथ के, एंड यहाँ पे आपको 4 टाइप्स नजर आ रहे होंगे टीथ के. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टाइप को आपके टीथ नजर आ रहे होंगे. एंड अगर आप डायग्राम भी देखो तो आपको दिख रहा है कि सारे टीथ एक जैसे नहीं होते. आप इसको भी मत देखो. आप अगर जाओ मिरर में देखो अपने टीथ को तो यू विल फाइंड कि आपको ये टीथ जो है एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं. तो यहाँ पे देखो इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है. नाम कौन कौन से लिखे हुए हैं? ऊपर देख लेते हैं. इंसीजर्स पहला देखा, इंसीजर्स. उसके बाद आते हैं केनाइन्स. ये सब नाम है किसके? टीथ के नाम है, केनाइन्स. फिर आते हैं प्रीमोलर्स, देन कम्स प्रीमोलर्स, एंड उसके बाद आते हैं मोलर्स. उसके बाद क्या आते हैं? मोलर्स. तो इंसीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंसीजर्स आपने देखे होंगे सबसे आगे वाले दांत जो है ये वाले, दिस वन, सबसे आगे वाले दांत है बेटा, ये ऐसे ब्रॉड होते हैं. देखो जैसे मैंने ड्रॉ किया ना, ये 2 दांत मैंने ड्रॉ कर दिए, ब्रॉड है. देखो इनका सरफेस कैसा? चौड़ा सा है, ब्रॉड है. ठीक है. इंसीजर्स हैं. उसके बाद आते हैं बेटा कैनाइन्स. कैनाइन्स बिल्कुल बगल में प्रेजेंट होते हैं इंसीजर्स के. ठीक है. यहाँ पे साइड में इंसीजर्स के. ठीक है. एंड वो कैसे दिखते हैं? थोड़े से शार्प होते हैं. ठीक है. थोड़े से कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, इस तरीके के. ऐसे कुछ आपको शार्प टीथ मिलेंगे अपने दांतों में जो थोड़े से शार्प होंगे, पैने होंगे नीचे से, राइट? उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स. ये प्रीमोलर्स फिर कैनाइन के भी बगल में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले इंसीजर्स हैं यहाँ, उसके साइड में आपको कैनाइन्स दिखेंगे थोड़े से पैने. उसके बगल में, उसके यहाँ बगल में इस तरफ आपको दिखेंगे प्रीमोलर्स. क्या दिखेंगे? उनका नाम क्या है? प्रीमोलर्स. ये नाम आपको याद रखने हैं. एंड प्रीमोलर्स थोड़ी इस तरीके के होंगे, ब्रॉड, है ना, थोड़े से ब्रॉड होंगे ऐसे. एंड फिर आते हैं मोलर्स. मोलर्स भी ब्रॉड है, मोलर्स भी ब्रॉड होते हैं और वो सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं इधर. गॉट इट? सबसे आगे इंसीजर्स हैं, उसके बाद आते हैं कैनाइन्स, देन कम्स प्रीमोलर्स और सबसे पीछे आते हैं मोलर्स. समझ में आ गया सबको? तो आपको डिजाइन से ही पता लग रहा होगा कि सारे टीथ एक जैसे नहीं नजर आते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. Alright, so now let us start with the activity 2.2, which is related to the types of teeth, that is from your NCERT. Alright, so let us start with the procedure now. Alright, so wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Hand wash कर लिए, go to the mirror and look at your teeth. Now use your index finger. This is the index finger. Alright, so now use your index finger to feel the teeth. What you have to do is you have to use this finger and then you have to try touching your teeth, right? Now what we are doing in this activity is basically we are trying to count. We are counting the number of teeth which are present, the types of teeth जो हमने पढ़ा था, incisors, canines, premolars and molars. Yeah, so how many kinds of teeth could you find that you have to observe, right? Now take a piece of an apple, bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And which one for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. So basically they are asking in this activity, what you have to do, first thing you did that you are counting the teeth. Done?
कि कितने टाइप के टीथ कितने नंबर से प्रेजेंट है, लाइक हाउ मेनी इंसिजर्स आर प्रेजेंट इन आवर टीथ, हाउ मेनी कैनाइन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी प्रीमोलर्स एंड हाउ मेनी मोलर्स, राइट. उसके बाद you have to take an apple or bread and then you try to eat it. Now from all these food items you have to find out that which fruit requires biting and cutting. आप जो फ्रूट खा रहे हो उसमें आप कोई फ्रूट ऐसा होएगा जिसको आप बाइट कर रहे हैं, some fruits you'll be cutting, all right, and some कुछ ऐसे भी फ्रूट होंगे जिनको you are piercing or you are trying to tear it. Either you are piercing the food, either you are tearing the food, right? And उसके बाद you have to find out which teeth you are using for chewing and grinding. अब जैसे एप्पल खाते हैं तो हम एप्पल कहाँ से बाइट करते हैं? जनरली हम अपने आगे वाले टीथ से बाइट करते हैं. You might have seen कि आपने एप्पल लिया और आप ऐसे लेके आते हो एप्पल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एप्पल इन माई हैंड एंड व्हेन आई ब्रिंग इट क्लोजर टू माई माउथ, so I'll use now incisors to cut and bite the food like this. Yeah? So I'm using my incisors. Whereas अगर कोई बहुत हार्ड सब्सटेंस है, let's suppose meat, let's suppose we are having chicken and chicken has flesh, right? तो flesh को bite करना is quite a tough task. It's better to use the canines. उसके लिए आपके जो sharp teeth हैं आप वो use करते हो to tear the food, yeah? And this similar thing you might have seen in the case of lions and tigers, क्योंकि lions and tigers eat flesh of another animals, and वो भी क्या use करते हैं? They use their canines, क्योंकि उनके इतने sharp canines होते हैं, so they use their canines to tear the flesh of another animal. So that is what they do, yeah. And उसके बाद what they do for chewing and grinding? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपको थोड़ा ब्रॉडर सरफेस एरिया चाहिए. थोड़ा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो आप अच्छी तरीके से फूड च्यू कर सकते हो. फॉर दैट वी हैव च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, फॉर दैट वी हैव आवर मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. यहाँ मोलर्स हैं आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ प्रीमोलर्स हैं. तो जब आप बाइट कर लेते हो तो आप फूड कहाँ से च्यू करते हो? पीछे की साइड से, राइट. तो आप च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कौन सा टीथ यूज करते हो? प्रीमोलर्स एंड molars. So let us now move on to the observation first. Okay, so observation is कटिंग एंड बाइटिंग के लिए टीथ आपके पास कितने हैं लोअर जॉ में? देख लेते हैं. तो लोअर जॉ में अगर काउंट करोगे बेटा लोअर जॉ में तो 4 हैं, अपर जॉ में भी 4 हैं, ठीक है. पियर्सिंग एंड टीयरिंग द टीथ अपर जॉ में 2 हैं, लोअर जॉ में 2 हैं, अपर जॉ में भी 2 हैं. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द टीथ अपर लोअर जॉ में 10 है एंड लोअर जॉ में भी 10 है. तो टोटल कितना हुआ बेटा? 4 + 4 8, 2 + 2 4, 10 + 10 20. तो ये कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ 32 टीथ. कितने नंबर ऑफ टीथ है हमारे माउथ में? देयर आर 32 नंबर ऑफ टीथ व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. आई गेस दिस इज क्लियर. उसके बाद आते हैं बेटा, आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट सलाइवा. ये बात क्लियर है. हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये हमें पता लग गया था. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं. एंड सलाइवा फर्दर क्या करता है? इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. व्हाट इट डज? इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बकल कैविटी में इनसाइड आवर माउथ. एंड जब भी हम खाना खाते हैं तो दे secrete a liquid like substance, थोड़ा wet like substance they release, that is called as the saliva which helps in the breakdown of food, ठीक है. तो same activity on कि how saliva breaks down our food, that activity we are going to perform in this. All right, so the activity is activity number 2.3. Now let us start with the procedure. Take 2 test tubes, label them as A and B. 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, उसको हमने A and B के साथ लेबल कर लिया. Now in test tube A, put a teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. ये देखो हमने क्या किया इस एक्टिविटी में. We have taken 2 test tube. This is test tube number A and this is test tube number B. ठीक है. इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ boiled rice डाला है. What we have put in this? We have put boiled rice solely in this, जो थोड़े से आपको ग्रेनी नजर आ रहे हैं, ठीक है. एंड इसमें आपने boiled rice आफ्टर च्यूइंग डाला है, तो च्यू करने के बाद आपका ऐसा थोड़ा सा सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है. तो ये क्या है? boiled rice after chewing for how many minutes? 3 to 5 minutes. This is test tube A and this is test tube B. Are we clear till here?
नाउ एड 3 to 4 ml. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. दोनों में हमने क्या डालना है, वाटर, H2O. दोनों में हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल दिया हमने. कितना, 3 to 4 ml. समझ आ गया सबको. नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. अब हमने क्या डालना है, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन. अगर आपको याद होगा बेटा, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने स्टार्च का हमने टेस्ट किया था. अगर आपको याद है, स्टार्च टेस्ट में हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते थे, we used iodine solution to confirm the presence of starch in the food item. All right, so what we did is now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. ठीक है. Why is there a change in color in the test tube? Now you have to see and tell कि इसमें टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो क्यों चेंज हो रहा है. तो आप ये देखो बेटा, टेस्ट ट्यूब, आप ए वाला टेस्ट ट्यूब देखो सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ बॉइल्ड राइस डाला था. तो जिसमें आपने बॉइल्ड राइस डाला है उसका कलर आया है ब्लू, है ना. एंड जिसमें आपने नहीं डाला, जिसमें आपने बॉइल्ड राइस च्यू करके डाला है, आफ्टर च्यूइंग इट, मुंह में आपने पहले च्यू किया थोड़ी देर, फिर आपने डाला, तो उसका कलर आप देखो, इट इज नॉट ब्लू, इट इज अ लिटिल येलोइश कलर, येलोइश, और depends on the food item that you are eating, that becomes brown also. ठीक है. So let us find out why it happens. Saliva treated rice does not turn blue with iodine solution. जिसमें सलाइवा था, क्योंकि देखो हम मुंह में अगर आप राइस च्यू कर रहे हो तो इट मींस सलाइवा इज आल्सो सिक्रेटेड इन आवर माउथ. तो सलाइवा क्या कर रहा है, सलाइवा से आप च्यू कर रहे हो तो सलाइवा इज गेटिंग मिक्स्ड इन दी फूड. आपके राइस में सलाइवा मिक्स हो रहा है, राइट. तो अब वो सलाइवा वाला फूड जो है वो आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर नहीं देता है और ना देगा. हाउएवर प्लेन बॉइल्ड राइस टर्न्स ब्लू विद आयोडीन. लेकिन जो प्लेन आपने बॉइल्ड राइस डाला है उसमें कलर आ जाएगा. क्यों देखो, अब देख लो, हमने पढ़ा था दैट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, एंड उनको ब्रेक डाउन करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो इट मींस कि अगर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है तो हमने उसको ब्रेक डाउन करना है ना बेटा, ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. आर वी क्लियर. तो बेटा हम सलाइवा की बात कर रहे थे. सलाइवा गेट्स सिक्रेटेड इन आवर माउथ. क्लियर टिल हियर. अब सलाइवा में बेटा एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है. तो एंजाइम पहले समझ लेते हैं क्या होता है. तो एंजाइम बेसिकली ऐसी चीज होती है बेटा, एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ब्रेकडाउन में. तो सलाइवा में किस तरीके का एंजाइम प्रेजेंट है बेटा, इट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि सलाइवा में प्रेजेंट है तो नाम से ही पता लग रहा है, सलाइवरी अमाइलेज. दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा इन आवर माउथ. एंड ये क्या करता है बेटा, एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज, इट ब्रेक्स व्हाट, स्टार्च. ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो अब आप सोचो, जब हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा में स्टार्च ही नहीं है तो उसमें आयोडीन का कलर कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना. तो इस वजह से टेस्ट ट्यूब बी में आपको ब्लू कलर नहीं आया, क्योंकि उसमें स्टार्च है ही नहीं. क्यों, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया. वेयरएज आप प्लेन बॉइल्ड राइस डाल रहे हो जिसको आपने च्यू नहीं किया है अभी तक, तो उसमें स्टार्च आपको मिलेगा. दैट इज व्हाई द ब्लू कलर कम्स. तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी फटाफट. So we use iodine to test the presence of starch in the food. Iodine forms a starch iodide complex and turns starch in blue. तो जिसमें starch present है बेटा, starch plus iodine कौन सा कलर दे देते हैं बेटा, ब्लू कलर दे देते हैं. ब्लू कलर दे दिया, ठीक है. Whereas boiled rice contains a large proportion of starch, so when we put the iodine solution to it, the solution turns blue. Simple. Starch अगर present है, अगर आपके सॉल्यूशन में, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में स्टार्च है तो उसमें अगर आप आयोडीन मिक्स करते हो तो आपको ब्लू कलर आएगा ही आएगा. और अगर स्टार्च नहीं है, अगर स्टार्च नहीं है, नो स्टार्च,
तो ब्लू कलर भी नहीं आएगा. देयर विल बी नो ब्लू कलर व्हेन यू पुट आयोडीन इन इट. समझ में आ गया सबको? ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं जो हमने जिसकी बात की थी सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है. Our saliva contains an enzyme amylase or it is also called as salivary amylase. ऐसा नहीं सोचना कि ये गलत लिखा हुआ है. It is right if you write down amylase also. तो it contains enzyme salivary amylase. So the enzymatic reaction between starch and saliva amylase breaks starch and other complex carbohydrates into simple sugars. इसका मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च किसकी प्रेजेंस में एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, क्योंकि वो सलाइवा में सिक्रीट होता है. स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स. किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल शुगर्स में. समझ में आ गया? बट sugar does not form a complex. As a result, chewed rice does not turn blue. इस वजह से च्यूड राइस में क्योंकि स्टार्च खत्म हो गया था, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया था, तो सिंपल शुगर स्टार्च नहीं होता एंड इस वजह से आयोडीन का कलर ब्लू नहीं आया. आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, ना फटाफट बात कर लेते हैं टूथ डीके की. कि टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया. फिर आपने देखा होगा ना दांत में कीड़े लग जाते हैं, वो किस वजह से लगते हैं? देख लेते हैं. Bacteria present in mouth break down the sugars present from the leftover food and release acid. क्या होता है बेटा, अगर हमारे मुंह में कोई खाना बचा रह गया, ठीक है, लेट्स सपोज हमने खाना खाया और हमारे मुंह में थोड़ा सा खाना बचा रह गया हमारे दांतों में, तो उसमें क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इवन इन आवर माउथ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, दे ब्रेक डाउन द शुगर्स. अब क्या करते हैं, खाना हमारे च्यू कर लिया तो वो क्या बन गया? सिंपल शुगर्स हो गए हमारे. तो हमारे माउथ में आफ्टर च्यूइंग द फूड क्या हो गए? द फूड हैज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स. ऑलराइट, सिंपल शुगर्स एंड विच आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया. उनको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है बेटा? बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहा है. समझ में आ गया सबको? And which releases acid. ये क्या रिलीज करता है? It releases acid. ये acid रिलीज करता है. Got it? So these acids, ये जो acids हैं, gradually damage the teeth and result in tooth decay. ये acid है बेटा, acid अच्छा नहीं होता दांतों के लिए. तो ये क्या कॉज करता है? ये वाला acid कॉज करता है tooth decay, जिसमें दांत जो है वो सड़ जाते हैं. इस वजह से हमें बोला जाता है ना कि whenever you eat food, you should always rinse your mouth, है ना. पानी से आपको हमेशा अपने माउथ रिंस करना चाहिए. You must drink a little amount of water, not too much water, but a little amount of water to rinse the mouth. And ये भी बोला जाता है रात में सोने से पहले आप दांत जो है you should brush your teeth so that the acid does not releases from the bacteria and you won't suffer from tooth decay. अब बात कर लेते हैं टंग की. टीथ हमने देख लिया बेटा, टंग की बात कर लेते हैं कि टंग के क्या फंक्शंस होते हैं. ऑलराइट, so tongue क्या है बेटा? It is a muscular organ, fleshy in nature, attached to the back of the base of buccal cavity. Muscular organ, first thing that we have discussed, and it is attached at the base back of the mouth. एकदम पीछे से attached होता है. It helps in mixing saliva with the food while chewing and aids in swallowing. दो फंक्शन कौन से इंपॉर्टेंट आ गए? पहला तो it helps in chewing and it helps in mixing, not chewing. Just a second. ये किस में help करता है बेटा? It helps in mixing the food, not chewing. If you are making the notes, note it down, jot it down, whatever I am writing here. So it helps in mixing the food. Mixing the food. ये first function हो गया बेटा इसका. And second function हो गया इसका swallowing. तो क्या होता है बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो दांतों से तो वी आर च्यूइंग इट, बट जो हमारा टंग है वो उसको मिक्स करता है सलाइवा में. जैसे हम स्पैचुला से मिक्स करते हैं ना खाना, सेम फंक्शन होता है टंग का. टंग ऑल्सो मिक्सेस द फूड इन आवर माउथ फ्रॉम सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है. एंड उसके बाद जब आप खाना च्यू कर लेते हो अच्छे से, देन जब आप स्वॉलो करते हो, अंदर भेजते हो जब फूड, तो उस स्वॉलोइंग में भी खाने को पुश करने में हेल्प करता है कौन? हमारा टंग.
So the tongue possesses taste buds that help us to recognize different taste. And आपने कभी अगर आप कुछ मीठा खाते हो, लेट्स सपोज आपने शुगर खा लिया तो आपको मीठा टेस्ट आता है, फिर आपने कभी अगर सॉल्ट खा लिया तो आपको सॉल्टी टेस्ट आता है, कभी आप करेला खा लो तो करेले से आपको बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है ना, एंड कभी आप नींबू खा लो तो आपको बहुत खट्टा टेस्ट आता है। वो इस वजह से होता है बिकॉज हमारे टंग के ऊपर जो सरफेस होती है वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देख ले कहाँ कहाँ होते हैं। तो जैसे ये टंग का डायग्राम है बेटा, देखो यहाँ पे माउथ, आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में आपको टंग का डायग्राम दिख रहा है। इसमें जो ये पीछे की तरफ है, टंग के पीछे की तरफ देखो जो पोजीशन है, ये आपको टेस्ट देता है बिटर, कड़वे का टेस्ट देता है। अगर यहाँ पे खाना लगता है आके तो आपको कड़वा टेस्ट आता है। उसके अलावा ऊपर में साइड साइड की तरफ, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, तो ये आपको सावर, खट्टा टेस्ट देती है। उसके अलावा जस्ट उसके नीचे जहां पे येलो कलर से बेटा मार्क्ड है पोजीशंस आपके टंग के साइड साइड में, वो आपको देगा बेटा सॉल्टी टेस्ट देता है। कैसा टेस्ट देता है आपको? सॉल्टी टेस्ट देता है। लेट मी मार्क इट हियर समवेयर, लेट मी मार्क इट जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपको देगा बेटा सावर टेस्ट, आपने समझ लिया। फिर आपको देगा सॉल्टी टेस्ट, एंड टंग के बिल्कुल सामने इधर यहाँ पे आपको मिलता है स्वीट टेस्ट। जब आप कुछ स्वीट खाते हो तो आपको स्वीट टेस्ट मिलता है जस्ट टंग के सामने वाले हिस्से में। समझ में आ गया सभी को? ओके। अब एक और एक्टिविटी है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द टेस्ट बर्ड्स ओनली। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज दिस एक्टिविटी अबाउट। Activity 2.4 from your NCERT. Now let us go through the procedure now. Prepare a separate sample each of a sugar solution. क्या क्या हमने सैंपल लेने हैं? Sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf और करेला, bitter gourd. किसके किसके हमने सोल्यूशन ले लिए हैं बेटा? सोल्यूशन हमने लिए हैं, शुगर का सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है। किसका किसका लिया है? कहाँ गया? शुगर का लिया है, कॉमन सॉल्ट का लिया है, लेमन जूस का लिया है, और नीम लीफ भी कड़वा होता है और बिटर गॉर्ड तो कड़वा होता ही है, करेला। नाउ blindfold one of your classmates and ask him or her to take out the tongue and keep it in a straight flat position. क्या करना है आपने? अपने फ्रेंड को बुलाना है and then you have to ask that friend, आपने उस फ्रेंड से पूछना है, क्या पूछोगे आप? वेट अप। आपने फ्रेंड को बुलाना है एंड फ्रेंड से आप बोलोगे कि अपनी टंग बाहर निकालो, और आप एक एक करके स्पून में डालते रहोगे जो भी आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। नाउ यूज अ क्लीन टूथपिक। क्या करना है आपने? एक क्लीन टूथपिक आपने लेनी है टू पुट above the samples one by one on a different areas of the tongue as shown in figure. जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे बिटर है, इन दोनों साइड पे हमने क्या देखा था? सावर है, फिर आ गया सॉल्टी, है ना, फिर सबसे नीचे आ गया था स्वीट। तो इन प्लेसेस पे आपने क्या करना है? वन बाय वन वो सॉल्यूशंस रखने हैं एंड ये पता लगाना है कि उनको टेस्ट कैसा आता है फ्रेंड को, ठीक है। सो यूज अ न्यू टूथपिक। हर सॉल्यूशन के लिए आपने न्यू टूथपिक यूज करनी है, ठीक है। Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. आपने अपने फ्रेंड को पूछना है कि आप मुझे बताओ कि हम जैसे सॉल्यूशन आपको रखते जा रहे हैं तो आपको ये टेस्ट, कड़वा टेस्ट कहाँ फील हो रहा है, खट्टा वाला कहाँ फील हो रहा है, स्वीट कहाँ फील हो रहा है, राइट। एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं बेटा। ऑब्जर्वेशन हमें क्या पता लगता है? दैट एवरी फ्लेवर हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर देयर टेस्ट। ये तो हमने देख लिया था। टिप ऑफ द टंग मेक्स अस फील स्वीट। टिप ऑफ द टंग पे हमें स्वीट फील होता है, while the back of the tongue, पीछ एकदम अंदर की तरफ, makes us aware of bitter जब आप करेला खाओगे। Sides gives us salty and sour. ये भी हमने देख लिया था कि जो टंग के साइड वाले पोजीशंस हैं वहां पे हमें salty and sour टेस्ट आता है। Now if we use different flavor at another location, we do not feel the taste. अगर आप bitter की जगह sweet डालो तो आपको वहां पे कोई टेस्ट नहीं आएगा। salty की जगह आप वो डालो, sour डालो, तो वहां भी आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो सबका टेस्ट वहीं आएगा जहां पे उनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों। सो द टंग कंटेन्स न्यूमरस टेस्ट सेंटर्स। टंग अपने के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड दीज
taste centers appear like a bud, so we call them taste buds. तो let's suppose ये मैंने टंग का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इस तरीके के बेटा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, देखो ये छोटे छोटे उठे रहते हैं टंग में, एंड ये हमें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ एवरी टेस्ट बड डिटेक्ट्स एनी ऑफ दीज फ्लेवर। हर जो बेटा टेस्ट ये बर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। Mainly bird which detect sweetness in the food. Besides sweet taste buds, there are numerous birds to detect salt also. वो हमने देख लिया था, स्वीट वाला एकदम सामने है, सॉल्टी साइड साइड में है, उसी के ऊपर सावर भी था, और अंदर बीच में बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या था, बिटर। सो बियॉन्ड द सॉल्ट टेस्ट बड, सॉल्ट टेस्ट बड के अलावा देयर इज अ टेस्ट बड ऑफ सावा ऑन द बैक। सॉल्ट के जस्ट ऊपर है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, देखो इमेज देखो आप, डायग्राम पे आओ, ठीक है। ये आ गया आपका बिटर, यहाँ पे बिटर फील होता है, इन दोनों जगह पे क्या फील होता है बेटा, सावर फील होता है टेस्ट, एंड इधर सॉल्टी होता है, एंड सबसे नीचे क्या होता है, स्वीट होता है, ठीक है। सो for there the taste buds for sour भी है at the back, and there are senses for bitter taste, देखो सबसे पीछे, और सबसे ज्यादा हमें कड़वा ही फील होता है, क्योंकि देखो टेस्ट बड्स कितने ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा कड़वा फील होता है। So if we put salt on the place which detects bitterness, then there is no sensory stimulation. अगर आप bitter की जगह let's suppose मैंने यहाँ पे sweet रख दिया, तो उसका टेस्ट नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ bitter का ही टेस्ट आएगा आपको। As a result, we do not feel any taste at this position. गलत जगह टेस्ट बड्स, अगर आप गलत टेस्ट बड पे गलत टेस्ट रख दोगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हमने बकल कैविटी कवर की है, इसके बाद आपका फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, all these we are going to cover in the next lecture. All right, so till then keep studying and I'll see you in the next lecture. Bye.